Hello, everybody, and welcome. We have a very special guest with us here today. His name is Amish. Amish is a history honors student in Punjab University in Chandigarh. Amish is not only incredibly handsome, but he's also super smart and a very compassionate human being. And because I've known him to be such a beautiful human being, I was intrigued by his faith. So, Amish identifies with Hinduism or Sanatan Dharma. Is that right, Amish? Yes, of course. So I think this is just your kindness because people with beautiful hearts see beauty in others. And Sonia ji is just a gem and a great human. Thank you so much. And guys, before starting this session, we would like to clarify one thing that if I use examples from different religions, that doesn't mean that I'm comparing them. See, every religion has similar philosophy towards God. God is one. And if the philosophy of every religion towards him is one, so what are we fighting for? And this thing is the solo aim or objective of our this session. Like Guru Nanak Dev Ji said, koi bole Ram Ram, koi khudai, koi save gosai, koi alai. Thank you. Amish, I have a few questions for you. So, what exactly is Sanatan Dharma? The second question is, how exactly is it different from other religions? And the third is that how did the name Hindu come into being? So, Sanatan Dharma means the eternal religion, the ancient law that is based on Vedas. So, it is the oldest of the living religions of the world. जो दुनिया का सबसे पुराना religion है, living religion, वो है सनातन धर्म. सनातन का तो मतलब ये है जिसका ना कोई अंत है जिसका ना कोई आरंभ है ना ही अंत. That is eternal. तो अब आपने जैसे पूछा कि ये रिलीजन से इसका डिफरेंस है. देखिए, पहली बात, रिलीजन और धर्म में बहुत सूक्ष्म सा और बहुत डीप सा डिफरेंस होता है. सनातन धर्म इज नॉट एक्चुअली रिलीजन. जो रिलीजन वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है जो कि ट्रांसलेशन है धर्म वर्ड की, और सनातन धर्म के अंदर ही धर्म आता है. नाउ व्हाट इज धर्म? धर्म मीन्स कर्तव्य या जो हमारी ड्यूटी है. लाइक एक स्टूडेंट की क्या ड्यूटी है या एक पेरेंट की क्या ड्यूटी है, हमारी अपने मदरलैंड के टुवर्ड्स क्या ड्यूटी है. ऐसे we'll talk about this dharma part later in detail. So religion is a faith that may change afterwards. क्योंकि जो हमारा faith है वो तो टाइम सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन धर्म कभी चेंज नहीं होता, वो एक दृढ़ रहता है. And according to me, how I interpret religion is that religion is a mutual contract between people that binds them together towards a particular ideology or a philosophy. तो जो एक particular ideology या philosophy है जो कि लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल है या जो लोग हैं उनको अपनी तरफ बाइंड करके रखती है, वो है एक रिलीजन. लेकिन जो धर्म है वो हमारा कर्तव्य है या जो ड्यूटी होती है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता. लाइक हीट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम फायर या लिक्विडिटी कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वाटर, वैसे ही धर्म कभी चेंज नहीं होता किसी भी सिचुएशन के हिसाब से. और सनातन धर्म is actually a science, a philosophy, जो कि लोगों को सिखाया जाता है कि it's a way of life, कि आपको लाइफ कैसे जीनी है. अब जैसे मैंने फिलोसफी की बात की, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले नमस्ते कहा जाता है. जब हम किसी को भी ग्रीट करते हैं तो हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं. तो इसके पीछे फिलोसफी क्या है कि द स्पार्क ऑफ लाइफ इन मी एंड द स्पार्क ऑफ लाइफ इन यू, these two spiritual essence is one and the same. And to that almighty God, my namaste, ki I see the soul in me and the soul in you is same, and that is nothing but the almighty itself. तो मैं उसको नमस्ते कर रहा हूँ. This is the philosophy. तो ये रिलीजन से बहुत ही डिफरेंट है. Now सनातन धर्म is based on this ancient religion is based on शास्त्रास. अब शास्त्रास दो तरह के होते हैं, ओरल भी होते हैं, रिटन भी होते हैं. तो जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है सनातन धर्म की, जो बेस है, दैट इज श्रुति. श्रुति होते हैं जो कि ओरल शास्त्र हैं, which that can be heard. Now भागवत गीता, that is the holy book of Hindus. भागवत गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे कौंते पुत्र, I spoke this imperishable science of yoga to sun god Vivasana. And Vivasana told it to Manu, the father of mankind, and Manu told it to Ichwaku. कि हे अर्जुन, ये जो योग की जो साइंस है ये मैंने
सृष्टि या यूनिवर्स के आरंभ में सूर्य देव विवासन को बताई, विवासन ने उसे अपने पुत्र मनु को बताई, मनु जो कि जिसको फादर ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है, और मनु ने उसे इक्ष्वाकु को बताई, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। तो मतलब ये जो फिलोसफी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है, जो कि ओरल है, जो कि रिटन, जो कहीं लिखी नहीं हुई, जैसे हमारे मोरल वैल्यूज हैं या जो हमारे एथिक्स हैं, ये कहीं लिखे नहीं होते, ये हमें सब समझाए जाते हैं, जो हमारी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। दिस थिंग इज कॉल्ड श्रुति। और इक्ष्वाकु का जैसे मैंने नाम लिया, इक्ष्वाकु की अमेजिंग बात क्या है कि इक्ष्वाकु के नाम से एक डायनेस्टी थी इंडिया में जिसको इक्ष्वाकु डायनेस्टी कहा जाता था, जिसे रघुवंश भी कहा जाता है, और लॉर्ड राम ने इसी रघुवंश में जन्म लिया। तो इक्ष्वाकु वाज नो अदर देन एंसेस्टर ऑफ लॉर्ड राम। और जो ये फाउंडेशन है श्रुति, जो इस फाउंडेशन के ऊपर जो पिलर्स हैं या जो वॉल्स हैं, उसे कहते हैं स्मृति, जो कि रिटन है, विच दैट कैन बी रिमेम्बर्ड, लाइक द चतुर्वेद, जो 4 वेद हैं हमारे, वो रिटन है। तो इन्हीं शास्त्रास पे बेस्ड है हमारा सनातन धर्म, जिसकी फिलोसफी है, और वेदों की इसमें सुप्रीमेसी है सनातन धर्म में। अब वेदों को सनातन धर्म में एक ट्री की तरह कंपेयर किया गया जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांच एक डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज, हर ब्रांच एक डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज है। लाइक किसी कोई ब्रांच है मिलिट्री साइंस की, है एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई हेल्थ की, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं वेद की। अब वेद की सुप्रीमेसी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी गई है कि दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मति पाप खाए, when the lamp is lit the darkness is dispelled, reading the Vedas sinful intellect is destroyed। अब हमने एक स्क्रिप्चर वर्ड बहुत यूज होता है रिलीजन में। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? स्क्रिप्चर्स रेफर टू अ बुक दैट गॉड रिवील्स फॉर द गाइडेंस ऑफ ह्यूमन काइंड थ्रू अ चोजन पर्सन लाइक अ prophet, whereas shastras contain texts that are nitya. Nitya means that are eternal, that are not created by anyone at any point of time. तो ये शास्त्रास। So Amish, by what I've understood is कि Sanatan Dharma is more of a culture than being a religion. Yes, I think you are right, because Sanatan Dharma we can compare it with an element, and religion is an atom. So I think we are confining an element into a atom. It is like confining Sanatan Dharma into a religion. I think it is the simplest explanation I can give for it. Yes. तो अमिश, ये नाम हिंदू फिर कैसे आया? तो नाम हिंदू के पीछे एक हिस्ट्री है छोटी सी कि देख, सनातन, लाइक आई सेड, सनातन धर्म इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, इट्स अ कल्चर, अ वे ऑफ लाइफ, and the sages of that era were actually scientists who gave emphasis on truth. They searched for truth and educated everyone about the unwritten laws of the universe. And during that time, अगर हम पुराने काल की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया को सप्त सिंधु सभ्यता कहा जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे सनातन धर्म को फॉलो करते थे, बिकॉज लाइक आई सेड, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, अ फिलोसफी। तो सभी के सभी सनातन धर्मी थे, इट वाज नॉट अ रिलीजन। तो किसी को नहीं पता था रिलीजन वर्ड क्या है, क्योंकि किसी भी हिंदू टेक्स्ट में भी, किसी भी वेदा में भी रिलीजन की बात नहीं की गई, ना ही हिंदुइज्म का कहीं जिक्र है। हर जगह सनातन धर्म की बात है, और धर्म इज लाइक आई सेड, ये धर्म है, ये रिलीजन नहीं है। तो यहाँ के जो भारतवर्ष के लोग थे वो सारे के सारे सनातन धर्म को मानते थे। लेकिन जो वेस्टर्न फ्रंट है, जहाँ पे अरब लोग रहते थे या जो पर्शियंस हैं, उनकी लैंग्वेज में एस को एच कहा जाता है, दे स्पेल SSH। तो सप्त सिंधु को वो सिंधु को हिंदू कहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने नाम इसे दिया हिंदुस्तान का। तो उनके हिसाब से जो हिंदुस्तान में लोग रहते थे उन्होंने उसको नाम हिंदू दे दिया। तो फ्रॉम हियर द वर्ड हिंदुइज्म एंड हिंदू इमर्ज्ड। और जब वेस्टर्न फ्रंट से इंडिया पे अटैक्स हुए और यहाँ पे मुस्लिम्स आए, या फिर बाद में जब ब्रिटिशर्स भी आए, तो उन्होंने आके यहाँ पे डिफरेंशिएट किया कि यू पीपल आर हिंदूज, वी आर मुस्लिम्स, वी आर ब्रिटिशर्स और वी आर क्रिश्चियंस। उससे पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तो फ्रॉम हियर सनातन धर्म बिकेम हिंदुइज्म। थिंकिंग